Hello everyone, welcome to Historian Jetu YouTube platform. Today we are going to discuss syllabus for modern India. In the previous two video we have discussed the syllabus of ancient and medieval India. हमारा main purpose क्या है? What is our main motto? Our motto is to help you to prepare for UPSC prelims examination and our one sentence motto is let's make history easy. हमारा पर्पस क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं? हम आपको यूपीएससी 2025 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स और ऑप्शनल पेपर की तैयारी यहाँ पे यूट्यूब द्वारा कराएंगे. देयर विल बी अ लाइव सेशन एंड वीडियोज ऑन ऑल टॉपिक ऑफ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. हम आपको रेफरेंस नोट्स भी दे रहे हैं इसमें. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सारे टॉपिक से रिलेटेड मंथली लाइव मॉक टेस्ट होगा जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट करूँगा and I will be discussing the things with you. Apart from it, what is going to happen? Apart from it, we will have a PYQ discussion for especially prelims and mains examination, and we will have map based questions for हिस्ट्री ऑप्शनल स्पेशली. ओके, और हमारा जो लेक्चर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा. ये इसलिए होगा दोनों मीडियम में ताकि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन दोनों में कोई डिफरेंसेस ना हो. अगर व्यूअर्स की डिमांड हुई तो मैं सेपरेटली हिंदी मीडियम और सेपरेटली इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, ये हमारा मेन चीज़ हो सकता है. अब हम देखते हैं हमारा भारत का मैप है स्पेशली मॉडर्न इंडिया का. इस तरह से मैप था. जो आपको येलो रंग का जो बाउंड्रीज दिख रहा है वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया थी और जो ब्लू रंग है वो प्रिंसली स्टेट्स था, है ना, डायरेक्टली. हालांकि the princely states were not ruling independently completely, they were subordinate to the British Empire. Okay, so let us see the topic of modern India and what will be the different syllabus and topic of modern India. Okay, so history of modern India has generally 11 to 12 chapters that I have decided, and then 3 chapters are from post independent history also. Okay, so what are we going to do? The first topic for ourselves will be 18th century India. As you know, in the medieval India we discussed that medieval India that started medieval India I am talking about. I am especially talking about just medieval India. Okay, so medieval period that started in 750 AD and it came up to 1750 AD, and it came up to 1750 AD. This was a main time period of medieval India. Do you know what happened? If we discuss especially this topic 18th century debate, so what are we going to do in the 18th century debate? In the 18th century debate, what is the most, so people say that the 18th century was a dark age. Again, why it was dark age? Because this period had no prosperity. इस period में कोई prosperity नहीं था. The two other important thing for which reason this has been called dark age and there is a decline of trade and commerce, many things etc. The first important thing happened in the 18th century is the downfall of Mughal Empire. Okay, so this was a downfall of Mughal Empire. This is the first thing that happened in the 18th century, just after series of events after the death of Aurangzeb. A first 2 categories हो गया. And other thing happened in the 18th century India, that is the rise of princely state. Okay, rise of princely states. These things happen. If I summarize you in short detail, then what are you going to find? Just after this, the other topic of ours will be the advent of Europeans. Okay, so how the Europeans came. So who are the Europeans who came to India? One people will be Portuguese, then we have Dutch, then we have Danish, then we have English people, and then finally the French people. These are the categories of people, the European powers who came to India, and later on they struggle for each other. So they struggle for supremacy. So there is a struggle of supremacy after that, and in all of this struggle of supremacy, who become victorious? It was British. So British ने सब लोग को हरा के by the time of 1750 they become very superior in India. Okay, ये तो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ था. इसके बाद जैसे ही वो सुपीरियर हो गए और इंडिया में प्रिंसली स्टेट का राइज हो गया, हमारा तीसरा टॉपिक आता है राइज एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. मतलब ब्रिटिश एम्पायर किस तरह से इंडिया में अपना पैर जमाया. तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है 1757
जो बैटल ऑफ बक्सर, और उससे बैटल ऑफ पलासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, और उससे पहले द स्ट्रगल बिटवीन नवाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर से इसमें पढ़ना है जैसे ही बंगाल अवध हराया गया उसके बाद हाउ दे डिफीटेड मैसूर, मराठा, देन रंजीत सिंह, देन देर आर सिंध है, वी हैव अफगानिस्तान, वी हैव म्यांमार। सो ऑल दिस सीरीज ऑफ different things that will be discussed in this chapter 3, that how British Empire established its rule and consolidated its rule in India। ठीक है, जैसे ये सब चीज़ होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा कि हाउ टू कंट्रोल दीज ऑल थिंग्स फॉर लॉन्ग पीरियड, इतने लंबे समय तक इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे रखे। तो इसके लिए हमारा चैप्टर 4 है, दैट इज़ द टूल्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। टूल्स मतलब सबसे पहले दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम रिफॉर्म्स। So one thing will be revenue settlement, revenue administration. We have permanent settlement. Then we have Raitwari settlement, Mahanbari settlement. Then we have administrative officials, like we have Indian Civil Service, Police Service, Indian Army. Okay. Then we have different regulation act, Pitt's India Act, Charter Act and all. So different laws and rules have been made by the British government in India in order to rule India. So that will be discussed in chapter 4. Okay, so just after chapter 4, the chapter 5 will be the response of Indians in terms of socio-religious reform movement. So sometime this topic is also called as Indian Renaissance. Why it is called as Indian Renaissance? It is because in this period, do you know what happened? There are different sets of religious activity and the social movements came both in Hindu and Islam. जैसे हिंदुज़म में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। ज्योतिराव फूले एंड अदर सोशल मूवमेंट्स आर देयर, पंडिता रमाबाई एंड ऑल। देन वी हैव इन सर सैयद अहमद खान, बहाबी मूवमेंट, देन वी हैव अलीगढ़ मूवमेंट, है ना। सो देर आर लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर देयर इन दिस कैटेगरी, एंड देन ऑल्सो वी डिस्कस अपार्ट फ्रॉम दिस मूवमेंट द सम ऑफ द लेजिस्लेशन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन सोशल सिस्टम, लाइक सती प्रथा हो गया, विडो डी मैरिज एक्ट हो गया, है ना, चाइल्ड मैरिज पे रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम चैप्टर 5 में पढ़ते हैं। ठीक है, वंस वी गो फ्रॉम चैप्टर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट को हम दो तरह से समझते हैं। वन रिवॉल्ट दैट हैपेंड बिफोर 1857 एंड दिस इज स्पेशली डन बाई ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। ओके, दीज मूवमेंट्स आर done by tribals and peasants. All right, whereas the other important movement which become very famous is the revolt of 1857. So that we discuss in detail, and this is the founding figure behind the emergence of Indian nationalism in India. Okay, then we discuss chapter 7, that is the emergence of Indian nationalism. So this will start from, according to Anil Seal, this will start from 1860s, है ना, 1860 से, and finally this will come with the foundation of Indian National Congress in 1885, and from 1885 there will be different phase of emergence of Indian nationalism. 1885 to 1905 they when the moderate and liberals were same, but after 1905 there is a division, है ना, दोनों में डिवीजन होता है। तो ये हमारा चैप्टर 7 है। बट होता क्या है, जो चैप्टर 7 है उसमें ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट लोग थे वो अपर क्लास और बहुत अमीर तबके के लोग थे, और ये सिर्फ शहरी क्षेत्र से, जो दिल्ली के जो बड़े बड़े शहर था, है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एंड ऑल, इन सब से आते थे। लोकल पार्टिसिपेशन जो था बहुत कम था इस समय। इसी समय क्या हुआ, गांधी केम टू इंडिया इन 1950। 1915 में गांधी इंडिया आते हैं, और जल्दी से 1917 से 1918 के बीच में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सारे सत्याग्रह में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर उस चक्कर हुआ। इस चक्कर में इन सब चीज़ आते हैं। 1915 वो इंडिया आते हैं। 1920 तक ही बिकम सो मच फेमस दैट ही डिड नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन फ्रॉम द एनी पीपल, इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे। और फिर इन्होंने नेशनलिज्म स्टार्ट किया, और इनके फेस को हम बोलते हैं गांधीयन नेशनलिज्म। ठीक है, सो ये जो गांधीयन नेशनलिज्म है, दिस नेशनलिज्म विल स्टार्ट स्पेशली फ्रॉम द 1920s ऑनवर्ड्स,
Okay, it start from 1920s onward and will go to 42. इसमें हमें पढ़ना होता है गांधीज अर्ली इंटरवेंशंस, चौरी चौरा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 8 हो गया। चैप्टर 9 इसके बाद स्टार्ट होता है अदर स्टैंड्स ऑफ नेशनलिज्म। अदर में हमें क्या पढ़ना है? हमें एक तो वर्किंग क्लास के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्किंग क्लास, व्हाट इज द नेचर ऑफ दलित, हाउ द पार्टीशन ऑफ दलित इज इम्पोर्टेंट, देन वुमेन। ओके, देन वी हैव लेफ्ट। these are the important topic that should be discussed in the chapter 9। इन लोगों का इंडियन नेशनलिज्म में क्या पार्टिसिपेशन था। इसके बाद जस्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, उस चैप्टर का नाम हमारा है इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। ठीक है, इस इंडिपेंडेंस और पार्टीशन में हमें देखना है कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ, भारत फाइनली 1947 में आज़ाद होता है, और आज़ाद में क्या प्रॉब्लम थी, क्या कठिनाइयाँ थी, वो हम चैप्टर 10 में डिस्कस करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट का जो मॉडर्न इंडिया का है, वो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन नेशन। दैट इंडियन नेशन का कंसोलिडेशन कैसे हुआ, हमारा यूनिफिकेशन कैसे हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, हाउ इट वाज डन बाय नेहरू और सरदार पटेल। ओके, दूसरा है हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, हमारा संविधान कैसे बना, एंड व्हाट वर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इंडिया वाज फेसिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सारे चीज़ हम चैप्टर 11 में डिस्कस करते हैं, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट का पार्ट है। और इसके बाद कास्ट एंड इथनिसिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें हम ध्यान देते हैं सी हाउ कास्ट एंड इथनिसिटी आर इम्पोर्टेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड फाइनली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल चेंज दैट हैपन फ्रॉम 1950 टू 1990s ऑनवर्ड, है ना, इस समय तक हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो था हमारा 13 चैप्टर्स था, दैट वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। इन ऑल चैप्टर वी विल हैव एटलीस्ट 4 to 5 वीडियो। उन सारे वीडियो में हमें ध्यान देंगे कि क्या क्या टॉपिक है और किस तरह से हम इसको चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड देन वी विल स्टार्ट इंडिविजुअल डिस्कशन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you for watching. Please like, share, subscribe and comment my channel Historian Jetu. Thank you so much.